Hello, parents and my dear students. Welcome to Aerodat School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3, Subject English Grammar, Chapter 2, Lecture number 1. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. इस लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड टर्न टू page number 5. This is chapter 2, page number 5. So what is chapter number 2? Regular and irregular plurals. What it is? Regular and irregular plurals. Now let us start chapter number 2. Look at the pictures and read the sentences given below. So what you have to do is you have to look at the pictures here and read the sentences below given the pictures. So the first sentence is a dog is barking. B-A-R-K-I-N-G. Barking. A dog is barking. So what does this sentence means? कुत्ता भौंक रहा है. A dog means एक कुत्ता. Okay. Now here we have another sentence. Look at the picture, students. इस पिक्चर में देखिए. And the sentence is the dogs are barking. B-A-R-K-I-N-G. The dogs are barking. Full stop. यहाँ कहा गया है कि कुत्ते भौंक रहे हैं. तो in first sentence it was just a dog. In first sentence it was one dog. देखिए यहाँ पर a dog यानी एक कुत्ता. The dogs जब उसमें पीछे s लग गया, डॉग के लास्ट में s ऐड हो गया तो वो क्या हो गया? डॉग्स यानी प्लूरल हो गया. एक नहीं, वो एक से ज़्यादा हैं. ओके, डॉग्स कुत्ते. नाउ बिलो वी हैव अ ट्री. इट इज़ अ मैंगो ट्री. ओके, दिस इज a mango tree. M-A-N-G-O. Mango tree. This is a mango tree. Which tree is it? Mango tree. ये कौन सा ट्री है स्टूडेंट्स? मैंगो ट्री. Now beside this we have many mango trees. So what we will say? These are mango trees. These are mango trees. So students, you can look at the both of the pictures. In first picture, it is just a mango tree. Single mango tree, one mango tree. Okay, students, आप देखिए दोनों ही पिक्चर्स को बहुत ही अच्छे से. फर्स्ट पिक्चर में सिर्फ एक मैंगो ट्री है और सेकंड पिक्चर में बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं. देखिए, कैन यू सी? Okay, now below we have the words dog and tree are singular nouns as they refer to only one animal or and one thing. So यहाँ का क्या कहा गया है स्टूडेंट्स कि जो वर्ड्स हैं, कौन से वर्ड्स? डॉग एंड ट्री. फर्स्ट पिक्चर में आप देखिए डॉग एंड नीचे इस पिक्चर में देखिए ट्री. यहाँ कहा गया है कि दोनों ही क्या है? सिंगुलर नाउन है. एज दे
refer to only one animal and one thing, क्योंकि ये सिर्फ एक जानवर और एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं। इनके पीछे कोई एस या ई एस नहीं लगा है, सो ये सिंगुलर है। ओके, अ मैंगो ट्री, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ कहा गया अ मीन्स एक। When a noun refers to only one person, animal, place or object, it is called a singular noun. So यहाँ कहा गया है कि जब कोई नाउन, कोई संज्ञा किसी एक व्यक्ति, किसी एक प्राणी, किसी एक स्थान या किसी एक वस्तु की बात करे तो वो कौन सा नाउन होगा? इट इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट्स? सिंगुलर नाउन। नाउ नेक्स्ट, below we have some examples, so turn your page to page number 6. We have some examples. We have two columns. First one is singular and the another is plural. Students, हमारे पास यहाँ दो कॉलम्स हैं। देखिए, पहला वाला कौन सा है? सिंगुलर, और सेकंड वन प्लूरल। So let us start reading the singular one. I have a sister, sister. So here it is said that I have a sister. यहाँ कहा गया है मेरी एक बहन है। I have a sister. In the column of plural, see what it is written. I have four sisters. I have four sisters. sisters. देखिए यहाँ पर कहा गया है कि मेरी चार बहनें हैं। ओके, सो यहाँ पर अ दिया गया था यानी वन, और यहाँ पर फोर दिया गया, चार बहनें। एंड यू कैन सी दे हैव एडेड एस इन द लास्ट। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सिस्टर के एंड में एस ऐड किया गया है उसे प्लूरल बनाने के लिए। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द कॉलम ऑफ सिंगुलर, द सेकेंड सेंटेंस इज देयर इज अ garden in my school, full stop. So this sentence is stating that there is a garden in my school. वहाँ है एक बगीचा in my school, मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में। ओके, यहाँ कहा गया है a garden. a garden का मतलब होता है एक बगीचा, एक गार्डन बगीचा। So let us move to the column of plural. There are many gardens near my school. So students listen carefully. यहाँ क्या कहा गया है? There are many, वहाँ बहुत सारे हैं, gardens बगीचे, near my school, मेरे स्कूल के पास। तो यहाँ कहा गया है कि मेरे स्कूल के पास बहुत सारे बगीचे हैं। You can see they have used the word many. Many, आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्ड मैनी का यूज हुआ है। मैनी मीन्स बहुत सारे, एंड एज यू कैन सी दे हैव एडेड एस इन द लास्ट ऑफ दिस वर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पर गार्डन के एंड में एस ऐड किया गया है उसे प्लूरल बनाने के लिए, उसे एक से ज़्यादा बनाने के लिए। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द सिंगुलर कॉलम, द थर्ड सेंटेंस इज कैन यू लेंड मी अ पेंसिल। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल, यहाँ कहा गया है क्या तुम मुझे पेंसिल दे सकते हो। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल, क्वेश्चन मार्क, अ पेंसिल, सो एक पेंसिल। कैन यू लैंड मी अ पेंसिल, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दे सकते हो। कैन यू लैंड मी टू पेंसिल्स, देखिए स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में आपको नंबर ऑफ पेंसिल्स बताया गया है, टू पेंसिल्स यानी दो पेंसिल्स, एक से ज़्यादा है तो वहाँ, सो हियर टू पेंसिल्स। ओके, टू पेंसिल्स। कैन यू लेंड मी टू पेंसिल्स, क्या तुम मुझे दो पेंसिल्स दे सकते हो। यहाँ कहा गया है पेंसिल्स, सो दिस विल बी प्लूरल। देखिए पेंसिल्स में एस लगा हुआ है, सो दिस विल बी प्लूरल। ये क्या होगा? प्लूरल। ओके, now look at the words in red in the sentences given on the right. So what you have to do is you have to look the words that are given in red. जो red में sentences दिए हैं आपको, उन्हें आपको देखना है। The words dogs and trees are plural
nouns as they refer to more than one animal and thing. यहाँ कहा गया है इस सेंटेंस में कि जो वर्ड डॉग्स हैं और ट्रीज हैं वो क्या है, प्लूरल नाउन्स है. कौन से नाउन्स हैं, प्लूरल नाउन्स हैं, क्योंकि वे एक से अधिक प्राणी, एक से ज़्यादा जानवर या वस्तु की बात कर रहे हैं, थिंग. ओके, सो वो कौन से नाउन्स में आएंगे, प्लूरल नाउन्स में. व्हेन अ नाउन रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, इट इज कॉल्ड अ प्लूरल नाउन. तो यहाँ कहा गया है कि जब भी कोई नाउन एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की बात करे, एनिमल की बात करे, तो वो कौन सा नाउन होगा, इट इज कॉल्ड प्लूरल नाउन. कौन सा नाउन होगा स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन. सो बिलो वी हैव सम एक्टिविटी टू बी स्टार्टेड. सो लेट अस स्टार्ट दिस एक्टिविटी. Underline the singular nouns and circle the plural nouns in the following paragraph. So what you have to do here is you have to circle the singular noun. Okay, sorry, you have to underline the singular noun and circle the plural nouns. आपको क्या करना है, आपको अंडरलाइन करना है सिंगुलर नाउन्स को एंड सर्कल द प्लूरल नाउन्स. और जो भी प्लूरल नाउन्स हैं इस पैराग्राफ में उसे क्या करना है, आपको सर्कल करना है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू हियर इज we will start reading the paragraph and then we will circle and underline the nouns as per the requirement. ओके, तो अगर हमें कोई सिंगुलर नाउन दिखेगा तो उसे हम अंडरलाइन करेंगे और कोई प्लूरल नाउन दिखेगा तो उसे हम सर्कल करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस बिगिन. Okay, so here we have our paragraph. Vikramaditya was the king of Kuntala. So here it is said that Vikramaditya was the king of Kuntala. Vikramaditya कुंतला के राजा थे. Okay, so we have three nouns in this sentence. इस sentence में हमारे पास तीन nouns हैं, but we have to read and understand what are they. Okay, so हमें पढ़ना होगा और समझना होगा कि वो कौन से नाउन हैं, सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल. सो फर्स्ट वर्ड इज विक्रमादित्य. जो हमारा पहला नाउन है इस सेंटेंस में वो है विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड विक्रमादित्य. हम विक्रमादित्य वर्ड को अंडरलाइन करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन द वर्ड विक्रमादित्य, क्योंकि ये किसी एक ही व्यक्ति का नाम है. ओके, ये किसी एक ही इंसान का नाम है, एक से ज्यादा लोगों का नाम नहीं है. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड विक्रमादित्य. विक्रमादित्य शब्द को हम अंडरलाइन करेंगे. वॉज द किंग ऑफ कुंतला. कुंतला के राजा थे. तो आप देखिए राजा मीन्स किंग, इट इज ऑल्सो अवर नाउन. ये भी हमारा नाउन है. क्या है ये, नाउन. सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड किंग. हम किंग वर्ड को भी अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स. हम अंडरलाइन करेंगे वर्ड किंग को बिकॉज दिस इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन. ये भी एक ही है, एक ही व्यक्ति का नाम या उपाधि है. ओके, किसी एक व्यक्ति की उपाधि है. सो इसे भी हम अंडरलाइन करेंगे. ओके, नेक्स्ट इज कुंतला. नाउ कुंतला इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन. ये भी सिंगुलर नाउन है बिकॉज ये भी किसी एक जगह का नाम है. ओके, सो हम इसे अंडरलाइन करेंगे. सो अंडरलाइन द वर्ड कुंतला ऑल्सो. स्टूडेंट्स कुंतला वर्ड को भी अंडरलाइन कर लीजिए. नाउ डन. Next sentence is
ही हैड 3 क्वींस। अगला सेंटेंस है ही हैड 3 क्वींस, उसकी 3 रानियां थी। हाउ मच क्वींस? 3 क्वींस। सो हियर द क्वींस वर्ड इज प्लूरल नाउन। ये जो वर्ड क्वींस है ये प्लूरल नाउन है। एज यू कैन सी एस इन द एंड ऑफ क्वींस, आप देख सकते हैं क्वींस के एंड में एस लिखा गया है, एज इट इंडिकेट्स दैट इट इज प्लूरल नाउन। ये हमें इंडिकेट करता है कि ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। सो आप इसे सर्कल कर लीजिए स्टूडेंट्स, सर्कल द वर्ड क्वींस। क्वींस वर्ड को सर्कल कर लीजिए, एक गोला बना लीजिए इसके ऊपर। डन। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट सेंटेंस इज वन डे an old sage came to visit them. So यहाँ कहा गया है एक दिन एक बूढ़ा साधु उनसे मिलने आया। an old sage. So students you can see here an, यहाँ पर an लगा है यानी एक। ओके, ओल्ड सेज, an एक आर्टिकल है जो किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान को दर्शाता है। ओके, सिंगल चीज को दिखाता है। सो एन ओल्ड सेज, एक बूढ़ा साधु। सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड सेज। हम वर्ड सेज को अंडरलाइन कर लेंगे बिकॉज इट इज सिंगुलर नाउन। ये कौन सा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, क्योंकि ये बता रहा है एक ही साधु। ओके, एक बूढ़ा साधु, तो ये एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है। सो वी विल अंडरलाइन दिस। Then he had brought them some presents and asked each one to choose what she wanted. Full stop. So यहाँ कहा गया है he had brought them some presents. वे कुछ उपहार लाए थे उनके लिए। some presents and asked, और कहा each one, हर एक से, टू चूज वॉट शी वॉन्टेड, कि वो चूज कर ले, पसंद कर ले, चुन ले उन्हें क्या चाहिए। ओके, सो इन दिस सेंटेंस वी हैव प्रेजेंट्स। ओके, प्रेजेंट्स, द वर्ड प्रेजेंट्स इज अ प्लूरल नाउन। देखिए स्टूडेंट्स, प्रेजेंट्स यानी तोहफे। अगर ये प्रेजेंट होता तो ये एक होता तोहफा, लेकिन यहां पर प्रेजेंट्स कहा गया है यानी तोहफे, उपहार। ओके, सो यहां पर लास्ट में एस लगाया गया है। दिस इज प्लूरल नाउन। ये कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, विच नाउन इज दिस? प्लूरल नाउन। ओके स्टूडेंट्स, इन द अबव सेंटेंस दैट इज वन डे एन ओल्ड सेज केम टू विजिट देम, ऊपर देखिए यहां पर जो सेंटेंस है वन डे, यहां पर हम डे को अंडरलाइन करना भूल गए। सो अंडरलाइन द वर्ड डे, एक दिन। ओके, सो वी विल अंडरलाइन द वर्ड डे। डे इज ऑल्सो नाउन एंड इट इज सिंगुलर नाउन। डे भी नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। सो अंडरलाइन द वर्ड डे, डे को अंडरलाइन कर लीजिए। एंड सर्कल द वर्ड प्रेजेंट्स, और प्रेजेंट्स को आप सर्कल कर लीजिए। स्टूडेंट्स, वर्ड डे को अंडरलाइन कीजिए और प्रेजेंट्स को आप सर्कल कीजिए। डन। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस। द सेज गिफ्ट वर 6 mangoes, a sword, an old book and some pearls. Full stop. सो यहाँ कहा गया है कि जो सेज के गिफ्ट थे, जो साधु के तोहफे थे, वो क्या थे? 6 मैंगोस, 6 आम, अ स्वॉर्ड, एक तलवार, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब, एंड और सम पर्ल्स, कुछ मोती। ओके, सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड गिफ्ट्स इज प्लूरल नाउन। स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए गिफ्ट्स जो है, यू कैन से प्रेजेंट्स और गिफ्ट्स, दे बोथ आर सिमिलर। आप प्रेजेंट्स कहिए या गिफ्ट्स कहिए, दोनों ही सिमिलर है, दोनों ही एक ही है। सो यहाँ पर कहा गया गिफ्ट्स, यहाँ पर लास्ट में एस लगाया गया है गिफ्ट के। सो दिस विल बी
प्लूरल नाउन. ये कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन. सो वी विल अंडरलाइन, ओके सॉरी, वी विल सर्कल द वर्ड गिफ्ट्स. हम वर्ड गिफ्ट्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सर्कल करेंगे. सो सर्कल द वर्ड गिफ्ट्स. गिफ्ट्स वर्ड को सर्कल कीजिए. देन इन दिस सेंटेंस ओनली, इसी सेंटेंस में आगे हम देखेंगे मैंगोज. अब यहां पर आप देखिए लास्ट में ES ऐड किया गया है. क्या ऐड किया गया है? ES. सो मैंगोज. वी विल सर्कल द वर्ड मैंगोज. हम मैंगोज वर्ड को सर्कल करेंगे. सो स्टूडेंट्स, सर्कल द वर्ड मैंगोज. आप मैंगोज वर्ड को सर्कल कर दीजिए क्योंकि ये प्लूरल नाउन है. मैंगो का मैंगोज होता है, सो मैंगो सिंगुलर होता है एंड मैंगोज इज प्लूरल. अ स्वॉर्ड. हियर इट इज सेड अ स्वॉर्ड, एक तलवार. अ स्वॉर्ड. अ स्वॉर्ड, एक तलवार. सो हियर, यहां पर हमें क्लियरली बताया गया है एक तलवार. सो दिस इज सिंगुलर नाउन. वी विल अंडरलाइन दिस वर्ड. इस लाइन को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे, बिकॉज हमें क्लियरली यहां पता चल रहा है कि ये एक तलवार की बात हो रही है. अ स्वॉर्ड, एन ओल्ड बुक, एक पुरानी किताब. ओके, सो दिस इज ऑल्सो सिंगुलर नाउन. ये भी सिंगुलर नाउन है, सो हम इसे भी अंडरलाइन करेंगे. सो स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड एन ओल्ड बुक. एन ओल्ड बुक को भी आप अंडरलाइन कर लीजिए. नेक्स्ट, एंड सम पर्ल्स. हियर सम पर्ल्स, कुछ मोती. सो व्हाट वी विल डू? वी विल सर्कल दिस वर्ड. इस वर्ड को हम सर्कल करेंगे क्योंकि कुछ मोती का मतलब होता है एक से ज्यादा. ओके, एक मोती से ज्यादा मोती. ओके, सो वी विल सर्कल दिस वर्ड पर्ल्स. स्टूडेंट्स, पर्ल्स वर्ड को सर्कल कर लीजिए. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस इट विल लुक लाइक सम व्हाट दिस. इस तरह से कुछ दिखेगा ये. यू कैन चेक योर आंसर्स हियर. स्टूडेंट्स, आप अपने आंसर्स यहाँ चेक कर सकते हैं. एंड इफ यू हैव मिस समथिंग यू कैन डू इट नाउ. अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, कुछ छोड़ दिया है, सो आप उसे अभी वापस दोबारा कर सकते हैं. नाउ मूविंग फर्दर, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू चेंज सिंगुलर nouns to their plural forms. So इस सेंटेंस में कहा गया है कि इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल नाउन्स में बदला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ बिलो वी हैव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर प्लूरल्स. सो लेट अस रीड दिस. नीचे हमारे यहाँ रेगुलर प्लूरल्स की डेफिनेशन दी गई है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं. प्लूरल फॉर्म्स ऑफ नाउन्स आर यूजुअली मेड बाय एडिंग s और es टू द सिंगुलर नाउन्स. तो यहां कहा गया है कि प्लूरल फॉर्म्स जो होती है नाउन की, किसी भी नाउन की, वो यूजुअली अक्सर कैसे बनाई जाती हैं? किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे s या es जोड़कर, s या es जोड़कर उसे क्या बना दिया जाता है? प्लूरल नाउन. ओके, द प्लूरल नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड फॉलोइंग दिस रूल आर नोन एज रेगुलर प्लूरल्स. तो यहां कहा गया है कि वो प्लूरल नाउन्स जो इस तरह से बनाए जाते हैं, किसी भी वर्ड के पीछे s या es लगाकर, जिन्हें प्लूरल बनाया जाता है सिंगुलर नाउन से, उन्हें कौन से नाउन्स कहा जाता है? कौन से प्लूरल्स कहा जाता है? रेगुलर प्लूरल्स. कौन से प्लूरल्स कहा जाता है स्टूडेंट्स? रेगुलर प्लूरल्स. ओके, सो टुडे वी हैव लर्नड 3 थिंग्स. आज हमने 3 चीजें सीखी हैं स्टूडेंट्स. फर्स्ट, व्हाट इज सिंगुलर नाउन. पहली चीज हमने सीखी आज सिंगुलर नाउन. ओके, second we have learnt plural noun.
दूसरी चीज़ हमने आज सीखी प्लूरल नाउन. ओके, एंड थर्ड थिंग वी लर्नड इज रेगुलर प्लूरल्स. तो तीसरी चीज़ हमने सीखी कि रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं. सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड एंड रिवाइज दिस चैप्टर. स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में ये चैप्टर पढ़ना है और बहुत अच्छे से समझना है. एंड यू हैव टू लर्न द डेफिनेशंस ऑफ सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एंड रेगुलर प्लूरल्स. स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशंस याद करनी है सिंगुलर नाउन की, प्लूरल नाउन की और रेगुलर प्लूरल्स की. ओके, आई होप you may like the video. Thank you for watching.